جو آپ کی ٹون ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے آپ کی فیلنگز کو. تو لیڈ تو کرتا وہی ہے جو پہلے اپنے آپ کو لیڈ کر سکتا ہے. انہیں ایک عام انسان کو خوش کرنے کی کوشش کی. بے شک اس کا ثواب ہے, بے شک وہ ایک اچھا عمل ہے, یہ بھی بات ٹھیک ہے. جنہیں ہم پسند کرتے ہیں پھر ان سے جڑی ہر شے پسند ہوتی, جو حیات ہو یا دنیا میں ہو یا دنیا سے چلا گیا ہو. آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ جس چھوٹی چھوٹی ضد جب آپ لگاتے جاتے ہیں تو اعتماد بڑھتا جاتا ہے, کنسسٹنسی آتی جاتی ہے. چونکہ جو انفلوئنسر ہوتا ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے تو انفلوئنسر بنتا ہے. وہ جب بھی اپنا پیغام یا میسج لے کر جاتے تھے, وہ انبیاء کرام ہوں, وہ صحابہ کرام ہوں, وہ اولیاء اللہ ہوں, جب کبھی بھی وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھتے تھے تو پہلا جو رسپانس یا ریئیکشن ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ لوگ یقین نہیں کرتے تھے, لوگ مذاق اڑاتے تھے, لیکن وہ اپنے اس عمل سے باز نہیں آتے تھے چونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم حق پر ہیں, ہم غلط بات نہیں کر رہے ہیں. اساتذہ جب کلاس روم کے اندر ہوتے ہیں تو وہ جب بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی رائے درست ہے یا غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ رائے دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. اور اگر آپ یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ جو رائے اس کے پاس ہے اگر اس کو دینے سے وہ اعتراض کرتا ہے یا دینے میں اسے کہیں نہ کہیں پرابلم ہوتا ہے تو پھر ہم 10ویں کلاس کے بچے سے یا 8ویں کلاس کے بچے سے یہ توقع تو نہیں کر سکتے. میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تو آپ ایک کام کیجئے, لمحہ بھر کو یہی جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے یہ آپ اپنے ہمسائے کو بتا دیجئے کہ لیڈرشپ کمیونیکیشن یا پھر سوشل انفلوئنس والا معاملہ ہوتا کیا ہے. اپنے ہمسائے کو بتا دیں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. کم آن پلیز. اچھا اب دیکھیے, کچھ دیر پیشتر جب میں نے آپ سے بات کی میں نے آپ سے کہا کہ صاحب آپ کے نزدیک یہ کیا ہے, آپ خاموش تھے, کوئی ایک آدھ بندے نے انہوں نے بات کی اپنے. اب ایسا کیا ہوا کہ آپ میں سے ہر شخص ان اے سینس کہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ تھے اس نے بات کی ہے. اس کی وجہ کیا بنی ہے فرمائیے گا, کوئی سا بھی بتا سکتے ہیں, کوئی ایک دو لوگ. جب آپ نہیں بات کر رہے تھے تو اس وقت کیا تھا؟ کانفیڈنس نہیں تھا جو یہ فرما رہے ہیں. اب وہ کانفیڈنس کہاں سے آ گیا؟ ونڈرفل. واٹ ایلس؟ جناب والا. یس, بیوٹیفل. اور سر کوئی ڈیفیکلٹ کام ہم نے ایک رینجز سیٹ کی ہوتی ہیں, ایک ایزی ہوتا ہے, ایک میڈیم ہوتا ہے, ایک ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. جتنی بھی گیمز بنتی ہیں اور جتنے بھی گیمز میں لیولز ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں. ہماری سائیکالوجی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. جب ہم ایزی کام کر لیتے ہیں تو ہم میڈیم کام پھر کرتے ہیں, پھر میڈیم سے ڈیفیکلٹ پہ جاتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی ہیومن سائیکالوجی میں کرتے ہیں. جناب والا جی, کوئی اور اس پہ رائے دینا چاہے جناب؟ ابھی آپ ہمارے لیڈر ہیں, آپ نے ہمیں سمجھا کہ ان میں کانفیڈنس نہیں ہے یا کوئی بھی ہے, اگر آپ نے اس ویلیو کو توڑنے کی کوشش کی. I tried, ٹھیک میں نے کوشش کی آپ کو. What else? Come on please. ہیزیٹیشن ہوتی ہے سر, کہ مطلب کہ پہلے کوئی بولے تو پھر شاید. یس, اسی بات کا میم نے ریفرنس دیا نا کہ وہ جو فیئر کا ایلیمنٹ تھا وہ وہاں جا کر بریک ہوا ہے. آپ کو وہ جو خوف تھا مجھ سے بات کرنے کا وہ پہلے جا کر ختم ہوا ساتھ والے سے, اور جب آپ نے اس سے بات کر لی تو پھر آپ کو کہا کہ میں نے تو بات ہی نہیں کرنی, ساتھ والے نے بتانا ہے. تو وہاں پر وہ جو فیئر آف بینگ ججڈ تھا وہ ویسے ہی چلا گیا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے. تھینک یو. اب ساتھ والے کی طرف منہ کر کے اتنا آپ کہہ دیجیے کہ دیکھو نا میں بات تو کر سکتا ہوں, بس ویسے ڈر رہا تھا. کہیے. یہ دیکھیے میں نے اس کے اوپر کافی تصویریں پھیلا رکھی ہیں, شاید اس کے کمیشن رنگ کا مسئلہ ہے جو بھی ہے. یہ ذرا آپ دیکھیے گا ایک جو فنڈامنٹلز ہیں افیکٹو کمیونیکیشن کے وہ کیا ہیں. آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو کیا لکھا ہوا کہ ڈیفینیشن اس کی کیا ہے کہ کمیونیکیشن از دا پروسیس آف ایکسچینجنگ. ایکسچینج کرنے کا نام ہے پروسیس. اب ایکسچینج آپ کسے کریں گے؟ انفارمیشن کو. ایکسچینج آپ کسے کریں گے؟ آئیڈیاز کو. ایکسچینج آپ کسے کریں گے؟ تھاٹس کو, فیلنگس کو, ایموشنس کو. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے لکھے ہیں انفارمیشن وغیرہ, یہ اس کے سامنے چھوٹی چھوٹی تصویریں بھی لگے ہوئے جیسے بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں, سمجھ آ رہی ہیں. آپ ذرا ساتھ والے کو بتائیے کہ کون سی والی انفارمیشن کے متعلق ہیں, کون سی والی تھاٹس کے متعلق ہیں, فیلنگ. صرف ہمسائے کو بتانا ہے مجھے.
अभी देखिए, ये जो आपके सामने तस्वीर थी, मैंने इस तस्वीर से कहा कि अब इस तस्वीर को आप जो भी समझ आपको आती है अब साथ वाले को बताइए। यहाँ मैंने आपको कोई इंस्ट्रक्शंस उस तरह से नहीं दी कि इसका ये मतलब है उसका वो मतलब है, मैंने कहा रिलेट करके बताइए, और आपने वो बताना शुरू कर दिया। तो आपने जब उसको बताया तो आप क्या शेयर कर रहे थे? इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अच्छा, जो लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग्स उसमें ले आते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस उसमें ले आते हैं, कभी वो अपने थॉट्स और आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ ले आते हैं। और ये सारे के सारा किसके ज़रिए होता है? थ्रू के बाद क्या लिखा हुआ है? ऐसा ही है ना। तो अब हमें कम्युनिकेशन कम से कम समझ आए कि कम्युनिकेशन होता क्या है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर आप अगर किसी कमरे में दाखिल होते हैं और वहाँ बैठा शख्स वो बेशक आपकी वालदा हो, वो कहते मेरे बच्चे का मूड ऑफ है। वहाँ बैठी वालदा शायद ये समझ लें कि मेरा बच्चा बहुत खुश है, हालांकि उसने कोई बात तो नहीं की, लेकिन वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट ज़रूर कर गया। अभी उसने बात नहीं की। आपने देखा होगा ये जो सिग्नल्स होते हैं, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि वो जो सुर्ख बत्ती में से को मुंह निकाल के ज़ोर से कहे कि बाहर भाई रुक जाओ, या कभी किसी ने ग्रीन बत्ती ने बोला हो ज़ोर से ऊंचा के जा सकते हैं आप। ऐसा तो नहीं होता ना, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद उन सिग्नल्स के साथ जो भी कम्युनिकेशन जोड़ दी गई है वो हमारी ज़ात का हिस्सा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटे बच्चों तक का चेहरा देखकर हम कहते हैं इसका मूड ठीक नहीं है। जब छोटे बहुत ही छोटे बच्चे होते कहते यार इसका मूड, कहते वो नींद से अभी उठा है ना, तो अभी इसका मूड थोड़ी देर ठीक नहीं होगा। यू माइट हैव सीन दैट। ये सब का सब कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। फिर आप हम जो इंसान हैं जिसको रब्बे कायनात ने हमें हैवान नातिक का लफ्ज़ हमारे लिए इस्तेमाल होता है कि हम वो लोग हैं जो बात कर सकते हैं, वो मखलूक हैं जो बात कर सकती है। उस एतबार से फिर हमारा कम्युनिकेट करना, हमारा बात करना, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, सब के सब जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से हमसे पहुँच रहे होते हैं अगले तक। अब जब भी उस्ताद साहब आपके कमरे जमात में तशरीफ़ लाते हैं, आपकी बॉडी का, आपके आंखों का, आपका देखने तरीका, सबकी कम्युनिकेशन मुख्तलिफ होती है। जब आप दोस्त के साथ बात कर रहे होते तो क्या होती है? वो और मुख्तलिफ होती है। तो ये सब के सब का इख्तलाफ जो है ये किस चीज़ के हैं? कम्युनिकेशन के हैं। यहाँ तक बात आप तक पहुँचा सका मैं? अब मुझे सिर्फ आपने एक बात बतानी है कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से पहले हमने कम्युनिकेट किया था, और किसको कम्युनिकेट किया था? आइडियाज़ को, थॉट्स को, इन्फॉर्मेशन को। जिस घड़ी मैंने एक स्क्रीन के ऊपर एक लेकर आया आपके सामने चीज़ कि साहब ये है, इसके मुतालिक आप मुझे राय दीजिए, तो उसके ज़रिए मैंने इनडायरेक्ट तरीके से आपको किस तरफ लगाने की कोशिश की? उसकी डेफिनेशन की तरफ। और अब जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो हमें पता चला कि साहब हम तो ये करके बैठे हुए हैं। एम आई क्लियर? तो अब आप लोग उसी तरह खड़े होके, वो जिस तरह मैं आपसे हमेशा कराता हूँ, आप खड़े होके एक दूसरे की तरफ यूं मुंह करके आपने सिर्फ ये शेयर करना है कि कम्युनिकेशन को हमने एक्सपीरियंस कैसे किया और हमने सीखना कैसे सीखा। एम आई क्लियर? सीखना कैसे सीखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि आप मेथड्स को समझ सकें जो आपके साथ अप्लाई किए गए। वैसे दिल में तूफान छुपाए बैठे हैं जितने भी लोग हैं, सबके दिलों में बहुत सी बात होती है, लेकिन उसको और बुनियादी तौर पर इन सेशंस का मकसद यही है कि आप लोग एतमाद के साथ बात कर सकें। आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? क्योंकि हमारा मुस्तकबिल तो आप लोग हैं ना। तो इसलिए आप लोगों को ये एतमाद देना, आप लोगों को इस लायक करने की कोशिश करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू कर सकें, बातचीत कर सकें, उसी यही मकसद उसका। और जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जिस घड़ी आप कम्युनिकेशन को समझेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, तो आप कम्युनिकेट करेंगे। अब मिसाल के तौर पर आप में से जितने भी यहाँ पर हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, जो जिनकी तरफ मैं यूँ देखने लगता और उनका वो इधर उधर मुँह करना शुरू कर देते हैं कि कहीं हमारी तरफ तो नहीं आ रहा है, तो वो भी तो मुझे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना कि साहब इधर मत आइए, है? समझ रहे बात को ना? तो ये सब के सब कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल तरीके से आप वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और मेरा काम ये है कि आपको बार बार दावत देना, बार बार दावत देना, और आप में से जो लोग उस दावत को कबूल करते हैं और अपना हिस्सा शेयर करते हैं हमारे साथ, उससे क्या होता है? उनके एतमाद में इजाफा होता चला जाता है। अब आप में से जो भी यहाँ पर बैठे हो, 2-3 दफ़ा ज़रा मुझसे बात कर लेंगे जिसमें सारी क्लास उसको सुन रही होगी, तो उनमें एतमाद बढ़ता चला जाएगा। और ये सोचते रहेंगे कि अच्छा अगली दफ़ा मैं बात करूँगा, अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं बात करूँगा।
तो यहाँ तक कि ये होता है कि अगर मसलन यहाँ से देखते देखते मैं वहाँ चला गया, हो सकता है यहाँ किसी का दिल बन रहा हो कि अच्छा मैं बात करता हूँ, और मेरी नज़र यहाँ से हटी तो उसने कहा चलो जान छूटी, मुझे बात ही नहीं करनी पड़ी, ये होता है। लेकिन ये नहीं कि मौका देना उस्ताद का काम होता है कि वो आपको मौका फराहम करे, अब उस मौके से फ़ायदा उठाना ये आपका काम है। उसके बाद हम ज़रा जब जाते हैं तो दो किस्म की कम्युनिकेशंस होती है, और दोनों को हमने एक तरह से एक्सपीरियंस किया, जिसके ऊपर हमने अभी उसका जिक्र किया है। तो इस स्लाइड को, जिस तरह मैं पहले भी आपसे कर रहा था, अभी भी पढ़ने की बजाय, मैं खुद पढ़ने की बजाय आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमसाए को ज़रा एक दफ़ा पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए। यस, कम ऑन प्लीज़। आप जरा इसमें देखिए, जिस तरह हमने देखा कि ये दो किस्म के, एक वर्बल है और एक नॉन वर्बल है, और दोनों को हमने एक्सपीरियंस किया जब हम पहले सीख रहे थे, समझ रहे थे। तो उसमें पहली बात आपकी टोन की आ गई। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टोन, तो उसका मतलब द फीलिंग इन योर वॉइस, ये टोन है। यानी आप गुस्से में हैं तो आपकी टोन बताती है, वो फीलिंग को शेयर कर रही होती है। आप नाराज़ हैं तो नाराज़ी आपकी वहाँ से जाकर जाहिर होती है। इसी तरह से आप उदास हैं तो उदासी जाहिर होती है जी। आप देखिए, अगर कोई आपके सामने और कहे कि आई एम फीलिंग सैड, आप कहेंगे अल्लाह का नाम मानो, ये सैड वाली टोन ही नहीं है, ऐसा है ना। और अगर कोई कहते हैं आई एम फीलिंग ग्रेट, तो ये ग्रेट वाली टोन नहीं है। तो जो आप फील कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर हम सेशन ख़त्म करते हैं और आप कहते हैं ना मैं ना बहुत खुश हूँ आज, आप कहेंगे ये तो रोने वाली खुशी है, ये कहाँ से खुशी वाली बात है। तो इसका मतलब जो आपकी टोन होती है वो बता रही होती है आपकी फीलिंग्स को। तो वो जो वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी टोन है, इट मैटर्स द मोस्ट, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ये नेचुरली हमारे साथ जुड़ी हुई होती है कि जब आप खुशी में बात करते हैं तो खुशी पहुंच जाती है अगले तक। आप गम में, उदासी में, दुख में, गुस्से में बात करते हैं तो वो बात वहां पर। अब मिसाल के तौर पर आप किसी कहते हुण मन भी जा, तो आपको मना थोड़ी रहे, आप तो धमका रहे है जी। तो बात समझने की ये जरूरत है कि जिस घड़ी आप किसी से बात करते हैं तो आपने पहले तो अपने लेवल पर कम्युनिकेशन को समझना है, फिर कहीं जाकर आप लीड करेंगे ना। और अगर आप अपने साथ ही ठीक नहीं होंगे, आप लीड कहां जाकर करेंगे। तो लीड तो करता वही है जो पहले अपने आप को लीड कर सकता है। साथ वाले को बताइए कि लीड कर ही वही सकता है जो पहले अपने आप को लीड कर सकता है। कहिए, आप जिस घड़ी आप अपने इख्तियार में नहीं होंगे तो फिर तो एक ही काम करेंगे आप चूंकि आपका अपने ऊपर इख्तियार नहीं है, तो फिर आप कहेंगे हर एक के ऊपर मेरा इख्तियार किस तरह से कायम हो। आप जब अपनी मान नहीं रहे होंगे तो फिर आप क्या सोचेंगे, आप कहेंगे ये मेरी मान क्यों नहीं रहे। भाई पहले आप अपने आप को तो मनवाइए। तो जिस घड़ी आप अपने आप, इस तरह मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि हर वो शख्स मुआफ कर सकता है जो अपने आप को मुआफ करने के ऊपर यकीन रखता है कि मुझे अपने आप को भी मुआफ करना है, मुझे अपने आप को भी बेनिफिट ऑफ द डाउट देना है, फिर वो सबको देना शुरू कर देता है। तो हमारे यहां नॉर्मली होता है कि हम कहते हैं दूसरा ठीक हो जाए, तो साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए ठीक करने वाले का ठीक होना जरूरी होता है। उसके बाद आप देख लिए पिच है, तो पिच में क्या है, हाउ हाई और लो योर वॉइस साउंड्स, यानी कितनी ऊंची आवाज के साथ आप बात करते हैं। असातिज़ा जब कमरे जमात में तशरीफ ले जाते हैं तो जाहिर उन्हें ऊंची आवाज में बात करता है कि दूर तक बात जाए, तो वो उसके अलावा वॉल्यूम के ऊपर हम बात करते हैं तो वो लाउड और सॉफ्ट, वो दोनों उसके तौर पर आ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, कभी आपने नहीं देखा कि टीवी की पिच ठीक कर दें, वो वॉल्यूम होता है या फिर वो रिमोट कंट्रोल के साथ। इस तरह से आपका जो बॉडी लैंग्वेज है इट मैटर्स द मोस्ट। और उसमें सबसे अहम बात है जब आप चल रहे हों तो आप लोग सीधे हों, आप खड़े हों तो आप सीधे हों। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप लोग खड़े होते हैं तो आपका ये जो हाथ है इसके पुश्त से आप अपने ये जो आपकी कमर है, आप ये यहाँ पर आप इधर यूं उसको लगाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप सीधे खड़े हैं या आप सीधे नहीं खड़े हुए। उसके अलावा ये है कि जब आप कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, जब कभी आप कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो आपकी कमर और कुर्सी की कमर में फ़र्क नहीं होना चाहिए, उससे भी इंसान सीधा बैठा होता है। और दूसरी बात उसमें यह है कि आपके जो दोनों पाँव हैं वो जितना ज़मीन के ऊपर करीब होंगे आपस में उतना ज़्यादा बेहतर फील करते हैं। ज़रा करके देखिए एक दफ़ा उसको, जितना आप करीब कर सकते हैं उसको वो करीब आप कर लेते हैं। दूसरा ये है कि जो इस हालत में बैठते हैं ये फॉर्मल स्टाइल है, ये फॉर्मल है बैठने का तरीक़ाकार। और सेमी फॉर्मल में ये होता है कि आप क्रॉस लेग कर लेते हैं, तो एक दफ़ा क्रॉस लेग कर लीजिएगा। अच्छा, अब क्रॉस लेग एक होती है यूं वाली, एक होती है यूं वाली। यूं वाली गैर मुनासिब होती है क्योंकि उसमें तलवा दूसरे के मुंह की तरफ होता है।
तो यूं करके ना कुछ यूं करते रहते हैं, वो नहीं करना, आपने यूं से रखना है। एम आई क्लियर? हाँ, ये क्रॉस लेग है, ये क्रॉस लेग है, फाइन, ये क्रॉस लेग है, ये क्रॉस लेग है, बिल्कुल ठीक होगा, ये भी क्रॉस लेग, यूं नहीं करना, ठीक होगी बात? तो आपने, हाँ ये क्रॉस लेग है, आप इस तरह भी बैठ सकते हैं, वो जैसे मैंने पहले अर्ज किया, आप उस तरह भी बैठ सकते हैं, सीधे बैठ सकते हैं, लेकिन ये कि कुर्सी के ऊपर आपने लेटना नहीं है। वो जो यूँ लेटने पड़े होते हैं, यूँ साइड पे, यूँ आधे आधे कुर्सी पर होते हैं, आधे नीचे होते हैं, वो नहीं करना। तो आप जितना इस तरह सीधा बैठेंगे उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी। अब एक दफ़ा यही सारी बात आपने हमसाये को बतानी है जो मैंने आपको बताई है। कम ऑन प्लीज। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आपके जेस्चर्स हैं, कुछ इसको गेस्चर्स भी बोलते हैं, जेस्चर्स भी। इस तरह से आपका आई कांटेक्ट है, पोस्चर की मैंने आपसे बात की। आई कांटेक्ट, जब आपसे कोई सवाल करता है तो उसी को देखकर जवाब देना चाहिए। जब आपसे कोई सलाम करता है तो उसकी तरफ आपको देखना चाहिए। जब आपसे कोई बात करता है तो आपको उसकी तरफ देखना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और आपने तवज्जो इधर उधर की है, तो वो तवज्जो तौहीन है उस रिश्ते की जिसमें आप बंधे हैं। दूसरी बात देखिए, अगर आपके ऑफिस में कोई आपके पास आता है, आप उससे बात करते हो, आपने ड्रॉअर खोली, बंद की और आपने कहा हाँ हाँ आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ, या आपने फाइल खोल ली, या आपने अपने सामने फ़ोन रखा और आप फ़ोन को यूं यूं देखी जा रहे, हाँ हाँ यार कानों से सुनते ना, मैं सुन तो रहा हूँ ना बाबा, ये गैर मुनासिब फेल है, इंतहाई गैर मुनासिब फेल है। तो आप जब किसी को सुनते हैं, आपको इस तर्ज पर उसे सुनना चाहिए कि उसे लगे कि उसे सुना जा रहा है। और सुनाने वाले जो लोग होते हैं वो सुनते हैं तो सुना सकते हैं। तो आई कांटेक्ट बहरहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप मेरे साथ मिलके कहिए कि जो सबको देखते हैं वो देखते हैं, और जो किसी किसी को देखते हैं वो ताड़ते हैं। बात पहुंच रही है ना? हाँ, जो सबको देखते हैं वो तो देखते हैं, और जो किसी किसी को देखते हैं वो क्या करते हैं। तो ये जो ताड़ू होते हैं ये खतरनाक होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इनसे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। पूछिए कौन से? जो ताड़ू को ताड़ते हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट। कुछ होते हैं कहते उन्होंने देखे वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, इनको और कोई काम नहीं होता। उसके बाद देखिए ये बॉडी लैंग्वेज जो है, इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इट्स अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जहां पर फिजिकल बिहेवियर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस और कन्वे इन्फॉर्मेशन, वो जिसके ऊपर हमने अभी बात की। अब देखिए हम कोई भी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं ना, चूंकि हम उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम उस पर बात कर चुके हैं, तो वो अब डेफिनेशन समझ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने देख लिया कि भाई यही है। उसके बाद देखिए जनाब वाला, इसकी पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। जो स्टैंडिंग टॉल है, वो जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया, जब आप स्टैंड टॉल करते हैं तो इससे नजर आता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। जो यूं झुक के खड़े होते हैं इधर को या उधर को, उससे लगता है कि इनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। और दूसरी बात है कि किसी को अहम भी नहीं समझ रही है, ये बात भी इनमें होती है, परवाह नहीं है इनको। और जब आपसे कोई बात कर रहा होता है और आप उसे सिर्फ देखे जा रहे हैं या उसे नहीं देख रहे हैं और आप यूं सर नहीं हिला रहे, तो उसका मतलब यह कि आप उसे सुन ही रहे, आप उसे समझ ही नहीं रहे। तो ये जो नॉडिंग है वाइल लिस्टिंग, इससे भी होता है कि आप इंगेज्ड हैं। एंड ओपन आर्म्स, यानी आपके जो ओपन आर्म्स हैं, आप जब बात करते हैं इस तरह करके, तो इसका मतलब कि आपके अंदर एक ओपननेस है और आप ट्रस्ट को डेवलप कर सकते हैं। और जो नेगेटिव है, ये जो क्रॉस्ड आर्म्स होते हैं, इसका इस तरह जो करते हैं, उनके मुतालिक कहा जाता है कि ये डिफेंसिव लोग होते हैं, ये डिफेंड कर रहे होते हैं, इनमें डिफेंसिवनेस सिग्नल आता है उसके। और अगर आप आई कॉन्टेक्ट को अवॉइड करें, वो आपको सबको पता है कि उसके क्या होता है कि इसके अंदर कोई नर्वसनेस पाई जाती है, या फिर ये डिसऑनेस्ट होते हैं, वो जाहिर है कहीं ना कहीं गड़बड़ तो करके बैठे होते हैं, वो तो इसलिए वो फिर आंखें मिला नहीं रहे होते। आई कांटेक्ट की पावर अगर आप देखनी हो तो वो ये है कि इससे कनेक्शन बिल्ट होता है, इससे ट्रस्ट आता है, इससे अटेंटिवनेस आती है कि कोई आप तवज्जो से चीजों को देख रहे हैं, क्रेडिबिलिटी इससे आती है, यानी आपका कि साख इससे जाहिर होती है। तो जब भी आप कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको इस तरह से देखना चाहिए, और इससे 3 से 5 सेकंड तक देखना चाहिए एक शख्स को। अगर आप देखना चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। वो जिस तरह एक साहब को कहा गया कि जनाब एक दफ़ा देखते हैं और फिर उसके बाद नहीं देखते, और आप कितनी देर से देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं पहली दफ़ा ही मुकम्मल नहीं होने दे रहा। समझ रहे बात को? अब आप देखिएगा कि जब कभी भी हम बात करते हैं, अभी आपने इसके ऊपर एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है,
जिसमें पब्लिक स्पीकिंग और नेटवर्किंग के हवाले से, और ये लीडरशिप के जितनी भी हम बात करें ये हैं उसी से मुताल्लिक। लेकिन हम अपने आप से निकले तो वहाँ तक पहुँचे ना। आप जब एक लीडर एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है क्योंकि उसे अपनी बात बतानी आती है, उससे अपना एहसास लोगों तक पहुंचाना आता है, और लीडर्स जो होते हैं फिर उनके लोग मर मिटने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो लीडरशिप को उस तरह से जाहिर करते हैं और वो फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं, वो सामने खड़े होते हैं। उसके फिर नतायज क्या निकलते हैं, लोग फिर एतमाद करते हैं। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने अपने पेट पे पत्थर बांधे, क्यों? सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं आपके साथ हूँ, ये देखें मैं भी उस चीज़ को उसी तरह फेस कर रहा हूँ जिस तरह आप लोग फेस कर रहे हैं। तो लीडर सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को उसी तरह से आपके साथ करते। जब आपको लगता है जब ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँगा, लेकिन वो उसको कम्युनिकेट कर। अब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर बांधे थे तो वो नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे थे ना, तो हम लोग वर्बली नॉन वर्बली हर तरह से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उसके बाद जनाब वाला ये जो अभी हमने बात की, अब हम इसको कर सकते ज़्यादा बेहतर तरीके से, जो मैंने आपसे पूरी ग्रुप एक्टिविटी करवाई थी। अब आपने यहीं बैठे बैठे पेयर में इन सवालों का जवाब देना है कि ये जो अभी गुफ्तगू आपकी हुई है, आखिर आप उसका हिस्सा कहीं ना कहीं थे। तो क्या डिड द स्पीकर स्पीक क्लियरली? आप साथ वाले से पूछे जो ग्रुप्स बने थे, क्या उसने क्लियरली बात की थी जो उसके अंदर जो भी बात कर रहा था? प्लीज कम ऑन, पेयर को बताए, सिर्फ इसका यस और नो बताना है आपने। यस और नो बताना है, इससे ज्यादा नहीं। या यस बता देने या नो बता देने। उसके बाद दूसरा सवाल देखिएगा, सुनिएगा प्लीज। अब दूसरा सवाल देखिएगा कि वॉज द बॉडी पोस्चर ओपन एंड नेचुरल? यस और नो के जवाब देने, उसके अलावा नहीं। उसके बाद आपने देखना है कि वो जो इंगेजमेंट थी, आई कांटेक्ट के जरिए इंगेजमेंट थी उसमें कि नहीं थी। अब आप देखिए, जब कभी भी आप फीडबैक देने के लिए जाते हैं, किसी को भी फीडबैक देते हैं, तो फीडबैक में कोशिश करें कि एक तो शुरू पॉजिटिव से करें। कि मिसाल अगर आपने बड़ी अच्छी कोशिश की, आप जब ये बात कर रहे थे तो इस बात के अंदर ये वाला लफ्ज़ आपने बड़ा शानदार इस्तेमाल किया, आपका ये जो पोस्चर था ये बड़ा शानदार था, आपने जो वो वाली बात की उसमें तो आपने कमाल कर दिया, ये आपने बातें की, और उसके बाद आपने आखिर में जाकर आप उनसे एक जुमला ऐसा कह दिया। लेकिन अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लें तो ये ज़रा ज़्यादा ठीक हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि पहले वो आपको एक्सेप्ट करे। जब तक वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपकी बात को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर आप उसे कह के इधर उतरो भाई स्टेज से, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम तो ऐसे ही पता नहीं क्या हो, तो आपने क्या किया, आपने उसे बताया, वो तो चलो फिर भी कोशिश कर रहा था, आपने क्या किया, उसको डीमोटिवेट किया। और जो डीमोटिवेट करने वाले लोग होते हैं वो मोटिवेटेड तो नहीं हो सकते, मोटिवेटेड तो मोटिवेट करता है। ये जितने भी डीमोटिवेटेड लोग होते हैं ये आपको हमेशा क्या करते रहेंगे, डीमोटिवेट करेंगे। आप इनके सामने बड़े जबरदस्त आइडिया लेकर जाएं और बड़े शानदार तरीके से पेश कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ, वो आपको कहेंगे नहीं नहीं ऐसे करके वेखे आज नहीं होता, हमने देखा हो ऐसे नहीं होता भाई, इस तरह नहीं होता है। तो उसके नताइज क्या निकलेंगे वो आपके सामने है। दूसरी बात, मैं आपसे यहाँ पर एक बात अर्ज करते चलो कि आप लोग रात को इशा के बाद सोने की कोशिश करें। क्लास में बैठे, ज़रा जमाई आ गई, वो स्ट्रगल कर रहे कि उस्ताद की नज़र ना पड़ जाए, हमसाए की नज़र ना पड़ जाए। तो ये सारे स्ट्रगल किस लिए होते हैं? क्योंकि रात को हम लोग सही तर्ज पर सोए नहीं होते। बैक टू द थिंग्स। उसके बाद ये है कि अब बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सोशल इन्फ्लुएंस। अब देखिए इसमें होता क्या है, आपने करना क्या है इसमें। इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन है कि इन्फ्लुएंस कहते किसको है? द एबिलिटी टू अफेक्ट द थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शन ऑफ अदर्स। आपके अंदर अगर ये सलाहियत है कि आप दूसरों की सोच को मुतासर कर सकते हैं, उनके बिलीफ्स को मुतासर कर सकते हैं, उनके एक्शंस को मुतासर कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप इन्फ्लुएंसर हैं, इसका मतलब आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं होता, किसी का फायदा उठाना नहीं होता। इन्फ्लुएंस होता किस बुनियाद पर है? ट्रस्ट पर, ऑथेंटिसिटी पर और वैल्यू के ऊपर। ये इन्फ्लुएंस होता है। आप किसी को मुतासर करें, मुतासर नहीं करें। कहिए साथ वाले को, ये रॉबर्ट चिल्ड्रेनी
के प्रिंसिपल्स हैं, वो ये कहते हैं कि जो इन्फ्लुएंस की साइकोलॉजी है उनके इस प्रिंसिपल्स को उन्होंने, वैसे तो उन्हें काफ़ी इसके ऊपर काम किया, उनकी बुक भी इसके ऊपर है, लेकिन हम इसके 4 एरियाज को हम इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर। पहले रेसिप्रोसिटी है। अब रेसिप्रोकेट करना जिसको बोलते हैं, यानी पीपल रिटर्न फेवर्स। उसने कहा कि आप किसी के साथ अच्छा अमल करते हैं, आपके साथ अच्छा अमल होता है, वो भी एक इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आपने इसलिए सुन रखा होगा कि नेकी कर दरिया में डाल। अब देखिए, नेकी जो है का जो अमल है, जब आप नेकी करते हैं, वो अमल बजाते खुद सिला है जो मिल चुका होता है। कहिए 3 दफा साथ वाले को। अक्सर ये होता है, अक्सर सुनने को मिलता। अच्छा, आप जब एक काम कर रहे थे तो अगर तो आपके जहन में यही था कि आप उसको फेवर कर ही इसलिए रहे हो कि वो फेवर करेगा, तो फिर तो आपका दुख बनता है। और अगर आप फेवर इसलिए कर रहे थे कि फेवर करना अच्छा अमल है, और अच्छे अमल का सिला, और वो अच्छा अमल का सिला अच्छा क्या होता है उसकी भी आपने डेफिनेशन बनाई हुई है। अच्छे अमल का सिला हमारे नजदीक ये होता है कि जिसके साथ हमने अच्छा किया वो हमारे साथ अच्छा करे। हालांकि अगर वो आपके साथ अच्छा ना करे तो ये और भी अच्छा होता है, क्योंकि फिर आपको सिला वहां से मिलता है जिसे सिला देना आता है। बात पहुंच रही है ना? तो इसीलिए मैंने कहा कि अच्छे अमल की जो तौफीक है ये सिला है जो आपको मिल चुका होता है। बल्कि इस तरह की अगर जहन में बात बैठ जाए तो आप जिसके साथ भी अच्छाई करें, आप तो खुदा से ये दुआ मांगे कि इसको मेरे साथ अच्छाई मत करने दीजिए, आप ही कर्म कीजिए। तो फिर क्या होगा? आप कभी दुखी नहीं होंगे। यहां माँ बाप, बहन भाई, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया है जी, तो फिर इसका मतलब उन्होंने अल्लाह के लिए तो नहीं किया, रज़ाए रब्बे कायनात के लिए तो नहीं किया। उन्हें एक आम इंसान को खुश करने की कोशिश की। बेशक उसका सवाब है, बेशक वो एक अच्छा अमल है, लेकिन बाद में फिर दुखी क्यों हो रहे हो? वो दुखी तभी होते जब वो कहते हैं कि रेसिप्रोकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी जो मैंने किया है क्या मेरे साथ वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाकर ये बातें हुई थी कि नेकी कर, हाँ, फिर उसको याद मत करना। उसके बाद देखिए अथॉरिटी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आप क्रेडिबल एक्सपर्ट हैं, आपकी बात को कहते हैं, उन्होंने ये बात की। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी मजहबी नुक्ते की बात करते हैं तो किसी बड़े आलिम का जिक्र करते हैं, हम जब किसी बीमारी की बात करते हैं किसी बड़े डॉक्टर का जिक्र करते हैं, तो इन्फ्लुएंसर जितने भी होते हैं वो क्रेडिबल होते हैं। उनके मुताबिक इन्होंने अगर ये बात की है तो ये बात ठीक होगी। और इसकी क्रेडिबिलिटी आप देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, जब वो तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए पहाड़ पर खड़े होकर, आपने क्या फरमाया कि मैं जो तुमसे कहूँगा कि ये, उन्हें कहा बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं माने। क्रेडिबिलिटी थी, साख थी। यानी जो नहीं मानते थे इस्लाम, मजहब, उन चीज़ों को, वो ये ज़रूर मानते थे कि ये क्रेडिबल है, वो ये ज़रूर मानते थे कि ये सादिक और अमीन है। वो क्यों ऐसा मानते थे? क्योंकि उनके सामने उनकी पूरी ज़िंदगी थी, वो उसको उसी तर्ज पर देख कर रहे थे। उसके बाद लाइकेबिलिटी, ये भी बात ठीक है, जिन्हें हम पसंद करते हैं फिर उनसे जुड़ी हर शय पसंद होती है, और जिन्हें हम पसंद नहीं करते फिर उनसे जुड़ी हर शय नापसंद होती है। तो जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उन्हें लाइक किया जाता है, उन्हें पसंद किया जाता है, उनकी बातों, आपने अक्सर देखा होगा ये जो एड्स बनते हैं, ये जो प्रमोशन के एड्स बनते हैं, आपने अक्सर देखा होगा उन हीरोज़ को, उन हीरोइंस को, उन मॉडल्स को, उन कैरेक्टर्स को सामने लाए जाते हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, और उन्हीं की बुनियाद पर वो चीज़ें वो ख़रीदने करने की कोशिश करते हैं। वो चाहे फिर बात हो, आप प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज़ बिकती हैं, तो आपने देखा होगा उसमें कोई ना कोई मॉडल खड़ा होता है, कोई ना कोई इस तरह के लोग खड़े होते हैं जिनको पसंद किया जाता है। इट हैपन्स। इस तरह आप देखें, ईद का मौका है, रमज़ान शरीफ का मौका है, जिन लोगों को पसंद किया जाता है, जिनका नाम है, उन्हीं की एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी, उन्हीं को आपको सामने लेकर आते हैं, फिर पैगामात उन्हीं के ज़रिए लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। हमारे यहाँ जब कोई हादसात होते हैं, जैसे फ्लड की सूरत में हादसा हो गया, अर्थक्वेक आया था, तो उसमें भी जो बड़े बड़े नाम वाले लोग थे जिनको दुनिया जानती थी, उन्हीं को बैठ के डोनेशन इकट्ठे किए गए थे, क्योंकि उनकी ज़ाहिर से ट्रस्ट भी था, लाइकेबिलिटी। उसके बाद एक कंसिस्टेंसी, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये इस्तिकामत जिसको कहते हैं। सो मुस्तकिम, फिर आप डट जाते हैं। कंसिस्टेंसी, जो लोग स्टिक रहते हैं विद कमिटमेंट्स, यानी जो उन्हें वादा किया उसे पूरा करते हैं। वो जब स्टिक रहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि उनके साथ यही लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके अलावा कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अब ये 4 चीज़ें आपके जहन में आई। अब इन चारों चीज़ों को जहन में रखते कोई भी ऐसा शख्स
जो हयात हो या दुनिया में हो या दुनिया से चला गया हो, आपके जहन में आया हो कि जिसके अंदर इन चारों में से कोई भी खुशियात मौजूद हैं या थी, तो वो सिर्फ हमसाये को बताइए, मुझे मत बताइएगा। कम ऑन प्लीज। छोटी छोटी जिदें करके, छोटी जिद का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए आपको 5 मिनट हो गए और आपको लगा कि बस यार अब, तो आपने कहना है कि नहीं, मैं 7 मिनट तक जाके बस करूंगा। तो आपने छोटी सी 2 मिनट की लगाई और उसे पूरा कर दिया। नेक्स्ट टाइम आपका दिमाग आपको 7 मिनट पे जाके यही वाला मशवरा देगा, बस करो, फिर 2 मिनट का और इजाफा कर देंगे। इस तरह से छोटी छोटी जिद जब आप लगाते जाते हैं तो इत्मीनान बढ़ता जाता है, कंसिस्टेंसी आती जाती है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं इसके ऊपर बाकायदा आज मैंने 2 घंटे ही पढ़ना और 5 मिनट भी आपसे नहीं पढ़ा जाता, तो फिर ये जिद ही अजीब है। समझ रहे मेरी बात को ना? तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसका बढ़ता जाता है स्टैमिना आपका, और चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाती है। उम्मीद है मैंने आपके सवाल का जवाब दिया होगा। जी जनाब। अगर किसी के अंदर ये चारों क्वालिटीज हो लेकिन वो किसी की बात को कंसिडर ना करे, वो कहे कि बस मैं ही सही हूँ और गलत अगला बंदा गलत है, तो उसके अंदर ये चारों चीज़ें होंगी नहीं। उसकी वजह मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए जब आपके अंदर ये 4 चीज़ें आ जाती हैं, आपके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आती है, आप एक्सेप्ट करते हैं, आप ज़्यादा सुनने पे यकीन रखते हैं, जो कि सीखने वाले आप होते हैं। सीखने वाले तो सुनने पे यकीन करते हैं। जब आप किस चीज़ को डिस्कार्ड करते हैं, मैं पिछले सेशन में अगर आप थे तो मैंने अर्ज़ किया था कि जब कभी भी आप तक कोई बात आती है, आप उसे अपनी तरफ आने देते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं। ये वाला बंदा उसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद अगर वो नहीं मानेगा तो वो ठीक है, प्रोसेस करने के बाद अगर वो मान लेगा तो भी वो ठीक है। लेकिन वो ऐसे नहीं कि सुनते हुए हाँ हाँ मुझे पता है, कभी भी नहीं कहेगा। चूंकि जो इन्फ्लुएंसर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है तो इन्फ्लुएंसर बनता है। आप जब तक किसी से मुतासर नहीं होंगे, आप किसी को मुतासर नहीं कर सकते। आप जब तक आपको सुनना अच्छी तरह नहीं आता, आप किसी को सुना नहीं सकते। तो आपकी बात में असर ही तब होता है जब आप किसी को सुनते हैं। और वैसे जो लीडर्स होते हैं इनके अंदर तो होता ही ऐसे नहीं सुनाते रहते हैं, ये सुनते बहुत हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। ये ऐसे सुनते कि सुनाने वाले को मज़ा आ जाता है। दूसरी बात है कि अगर हम मिसाल के तो समझते हैं कि किसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं और वो आपको सुन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उसके पास सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर उसके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो आई डोंट थिंक सो। बल्कि ये लोग तो इतने काम होते हैं कि क्या ही बात है। मेरी राय है, आप इख्तलाफ का हक रखते हैं जनाब। सर हमने ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ना आइज कांटेक्ट पढ़ा था। जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आइज कांटेक्ट करना चाहिए। Sir, whenever we will talk with the opposite gender, our Islam told us that कि हमें अपनी नज़रें झुका के बात करनी चाहिए। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी मेजर रोल है। तो इस सिनेरियो में सर हम क्या करना चाहिए? मैंने आपसे वो 3 से 5 सेकंड का जो बताया है वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मैंने आपसे इब्तदाई में अर्ज़ किया था, वो जो कि सबको देखना और ताड़ना, उसका फ़र्क पता हो तो कोई मसला नहीं होता है। उसके बाद देखिए इसकी केस स्टडी आप देख लीजिए कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आप देखिएगा कि वो इन्फ्लुएंशियल क्यों थे। पहली बात तो ये थी कि उनका पर्पस की उनको क्लैरिटी थी। ही वॉज वेरी मच क्लियर हेडेड कि उन्हें होमलैंड चाहिए मुस्लिम्स के लिए, दैट्स इट। दूसरा उनमें क्या था, उनमें करेज थी। जितने प्रेशर्स उनके ऊपर आए वो सारे प्रेशर्स को बर्दाश्त कर गए, जितने पॉलिटिकल प्रेशर्स उनके सामने आए। और तीसरा उनमें लीडरशिप थी। वो देखे ना, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ कॉमन कॉज के ऊपर वो यूनाइट होकर उन्हें चीज़ों को और तर्ज पर देखा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप में फेथ है, उनका भी कहना है, डिसिप्लिन है, आप सेल्फलेस हैं, डिवोशन है ड्यूटी की तरफ, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको उस अचीवमेंट से रोक सके। तो हमारे पास केस स्टडी अगर हम देखें तो हमारे अपने जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह है, वो हमें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि उनके अंदर ये सब चीज़ें थी, इसलिए वो लीडर थे। और यहाँ तक कि लोग क्या कहते, जिनको अंग्रेज़ी समझ नहीं भी आती थी, उन्हें ये यकीन होता था कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो इसका मतलब ज़ाहिर है क्रेडिबिलिटी थी, तो ये वाली बात थी। अदरवाइज इज ऑलवेज अदरवाइज। अब आज के सेशन के जो कॉमन टेक अवेज हैं वो देख लीजिए, वो क्या है। पहली बात क्या है कि कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन ये स्किल है जिसको सीखा जा सकता। इसका मतलब अच्छी कम्युनिकेशन को सीखा जा सकता है। जब उसे सीखा जा सकता है तो हम क्यों नहीं सीखें। दूसरा टेक अवे क्या कि नॉन वर्बल क्यूज से मोर देन वर्ड्स। ये जो आप कहते हो उससे कहीं ज्यादा असर आपके दिखने का होता है।
اور انفلوئنس گروز تھرو ऑथेंटिक کنیکشن. آپ کا انفلوئنس ہوتا تب ہے جب آپ کا کنیکشن جو ہے وہ ऑथेंटिक ہوتا ہے, یعنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اور کانفیڈنس کیسے امپروو ہوتا ہے؟ پریکٹس سے اور فیڈ بیک سے. اب آج جو مجھ سے بات جنہوں نے کی, مجھ سے بات کا مطلب کہ پوری کلاس کے سامنے جنہوں نے بات کی, ان کا اعتماد اور ہوگا, اور جو سوچتے رہے کہ ہم نے بات کرنی تھی ان کا اعتماد اور ہوگا.